Welcome students, welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. So this is the video for class 7. Today we read your book, and in your book we read chapter number 4, Learn to use Animate CC. This is your syllabus which we read in this chapter, Learn to use Animate CC, Introduction, Start and the other things. Now we read one by one. First of all, the introduction. As you all know, Animate is an software or the animation software package created by Adobe system. So who created the Adobe software for me, or sorry, the Animate software for me is the Adobe system. It is used to create animations, games, cartoon, text, graphic. As you all see in your daily life, there is so many work is happened in your daily life. When you show the cartoons, when you show the graphics, sometimes you playing the games. How can we create this type of games, cartoon? So we use some of animation software. So Animate CC is also the one of those software which we use for creating the games, cartoon or the graphics. I say, it's the one of those softwares. Okay, ये ही एक सॉफ्टवेयर नहीं है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बट वी हैव टू रीड दिस सॉफ्टवेयर. नाउ द हाउ कैन वी स्टार्ट द एनिमेट सीसी, द नॉर्मल प्रोसेस. हाउ कैन वी स्टार्ट द अदर प्रोग्राम इज द सेम वे. Click on the start button on that area, and then go in all apps or all programs. Choose the any Adobe Animate 2019. Now creating a new file. How can we create a new file? This is the same way. How can we start the new file in the Notepad, Wordpad. जैसे Wordpad या Notepad में हम लोग new file start करते हैं, there is the same process. Click on the file button and choose the new option or the import option. Okay, that is the way how can we create a new file in Adobe Animate. Now how can we save a file? The same way, how can we save a file in this one? When your work is finished, then go in a file option पे जाना है. Choose your save or savage option. सेव या सेवेज ऑप्शन को चूज़ करना है. अपना फाइल लोकेशन देना है. फाइल लोकेशन पहले ढूंढ लेना है, कहाँ रखे हैं, डॉक्यूमेंट में रखे हैं, डी टाइप में रखे हैं, वेन एवर यू वांट टू स्टोर. चूज़ योर फाइल एंड देन इंटर द नेम. फाइल नेम देना है. इंटर अ नेम फॉर योर फाइल एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. ये करना जरूरी है. हाउ कैन वी ओपन अ फाइल? सो फॉर ओपन अ फाइल द सेम प्रोसेस. गो इन अ फाइल बटन, click on open option this time. When we save, then we click the save option. When we open your file, then click on the open option and then choose your file, click on the open button. Okay, setting a document property. So first of all we have to know what is a property. Means everyone have some his own property. सबके पास कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है. और पहले तो प्रॉपर्टी पैन हमको राइट साइड में, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको. दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी पेन्स और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. ओके, सो ये हमारा प्रॉपर्टी एरिया है जो कि हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं. सो एवरी ऑब्जेक्ट और द शेप विच वी यूज इन हियर और द टेक्स्ट एनीथिंग विच वी यूज हियर, सबके पास अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है. जैसे टेक्स्ट के पास अपना स्टाइल है, कलर है, शेप है, साइज है. उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है उनका भी शेप है. जैसे स्टार शेप है तो उनका स्टार प्रॉपर्टी है, उसमें क्या कलर आएगा वो उसको प्रॉपर्टी है. सो दीज आर द properties which we use with the objects or the shapes. Okay, now we move forward. Property inspector, as we already talking before this one. Property inspector वो जगह है. Property inspector is the those area where we change the property of anyone. हमको किसी का प्रॉपर्टी इंक्रीज करना. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ नंबर प्रॉपर्टी. सो वहाँ पे क्या होगा कि नंबर का एक लिमिट है 8 डिजिट तक, 9 डिजिट तक. हमको उसको इंक्रीज करना है तो हमको कहाँ जाना होगा? वी हैव टू गो इन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर फॉर दोस ऑब्जेक्ट. हाउ कैन वी गो दिस? पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखेंगे और उसके बाद राइट में आपने देखा था प्रॉपर्टी था, वहाँ क्लिक करना है और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर खुल जाएगा. ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरली? एक्चुअली कुछ की प्रॉपर्टी इनसे भी ज़्यादा होती है और कुछ की इनसे कम भी होती है. तो हम लोग कुछ उनके बारे में बात करेंगे जो मेनली जनरली होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट का क्या क्या होगा? स्टॉक कलर होगा, फील कलर होगा, ठीक है, स्टॉक स्टाइल होगा, स्टॉक हाइट होगा. सो दीज आर द सम कॉमन प्रॉपर्टी विच हैव एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का ये सब कॉमन प्रॉपर्टी होता है. स्टॉक कलर क्या है? उसके बाहरी कलर. फील कलर, उसके अंदर जो कलर जाएंगे. तो स्टॉक कलर क्या है? वो कलर के बारे में नहीं बता रहा है. तो स्टॉक कलर टॉकिंग अबाउट which type of color he take. He take the crayon color, he take the
मार्कर कलर, ही टेक द स्केच पेन कलर, ये कलर के बारे में वो बात कर रहा है. ओके, now using animate tools, how can we use the animate tools? For example, line tool. तो as we know or as we hear this thing, the line tool is used to draw a line. लाइन टूल किस लिए यूज़ हो रहा है? और लाइन ड्रॉ करने के लिए. दिस इज़ द कॉमन वे वी हैव नो, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है. नाउ द पेंसिल टूल. वाई वी यूज़ द पेंसिल टूल? फॉर राइटिंग समथिंग, फॉर ड्राइंग समथिंग, फॉर फ्री हैंड. समटाइम हमको कुछ फ्री हैंड भी ड्रॉ करना पड़ता है, तो उस टाइम हम लोग पेंसिल टूल का यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग पेंट प्रोग्राम में भी देखे हुए हैं, पेंसिल टूल का क्या यूज़ होता था? हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए उसका यूज़ करते थे. समटाइम वी ऑल्सो यूज़ द पेंसिल बटन, पेंसिल टूल फॉर ड्रॉ द शेप्स. This is the some other tools also. Pen tool is also for the using the some colors of. Okay, पेन टूल का मेन रीज़न क्या होता है कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ पेन टूल्स मिल जाते हैं. एज वी ऑल नो, इन पेंट ऑप्शन हम लोग को बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रश मिलते थे. यहाँ पे उसी को हम लोगों ने पेन टूल में कर दिया है. अब क्या है कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रश पेन मिल जाते हैं. जैसे कि हमको मोटा चाहिए, देन वी हैव मोटा वाला पेन लेंगे. देन इफ़ वी वांट द थिनर पेन, देन वी टेक द थिनर पेन. ओके, रेक्टेंगुलर टूल्स. रेक्टेंगुलर टूल्स, एज वी नो, एज हिज नेम, if you want to draw a square, if you want to draw a rectangle, if you want to draw a box, then we use the rectangular tool. हमको rectangular tool का यूज़ क्या है? एक बॉक्स ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो हम लोग रेक्टेंगुलर टूल का यूज़ करेंगे. जरूरी नहीं है ये रेक्टेंगुलर हो, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल में भी हो सकता है. स्क्वायर भी हम लोग इसी से यूज़ करके बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ वर्क के लिए हम लोग इसका रेक्टेंगुलर टूल का यूज़ करेंगे. नाउ क्रिएट अ न्यू ग्रेडियंट. हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू ग्रेडियंट? तो एक काम करते हैं, मैं न्यू ग्रेडियंट का आपको थोड़ी देर में डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू ग्रेडियंट इन अ शेप और इन अ पेज. ओके, कॉपी एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट. एज वी ऑल नो, फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ कॉपी एंड मूविंग ऑप्शन, यू हैव टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट. एज वी सी इन द स्टेप, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिलेक्शन टूल. सिलेक्शन टूल का यूज़ करके उसको सेलेक्ट कर लेना है. सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द एडिट फाइल. उसके बाद एडिट फाइल में जाकर कॉपी कर लेना है. एंड देन सेलेक्ट पेस्ट द कंट्रोल ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू. एडिट मेन्यू में जाकर के फिर से उसको पेस्ट भी कर देना है. ये हो गया कॉपी का. अब कॉपी में क्या होता था कि उसका डुप्लीकेट कॉपी जाता था. ठीक है, मान लिया मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट किया है, तो ये दोनों ही रह जाता था. लेकिन व्हेन वी यूज़ द मूव ऑप्शन, तो मूव ऑप्शन मीन्स कट पेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूव ऑप्शन? कट एंड पेस्ट. एंड व्हेन वी यूजिंग द मूव ऑप्शन, अगर मैंने इसको कट किया है तो ये अपनी जगह से क्या होगा? चला जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, और जहाँ इसको पेस्ट करेंगे सिर्फ वहाँ रहेगा. ठीक है. एंड इफ़ वी डूइंग वन टाइम कट और पेस्ट, अगर हम लोग एक बार कट पेस्ट कर लेते हैं तो भी हम उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, और कॉपी करने पे तो मल्टीपल टाइम पेस्ट कर ही सकते हैं. सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कट एंड पेस्ट. टाइमलाइन पैनल. Timeline panel is the most important thing. Actually, why we are here for the timeline, for understanding the timeline. To design and animate movie, अगर कोई मूवी हमको डिज़ाइन करना है, the timeline plays an important role. टाइमलाइन क्या करता है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत सारे जो पेजेस होते हैं उनको वन बाय वन लगाते हैं. हमने आपको पहले भी एक बार क्लास में बताया था कि अगर हमको पहले क्या होता था कि कोई कार्टून मूवी अगर बनती थी तो एक बेचारा पेंटर होता था जो हर एक पेज को ड्रॉ करता था. ओके, फॉर एग्जांपल हैंड मूवमेंट को ड्रॉ कर रहा है, हैंड मूवमेंट को दिखाने के लिए 100 पेजेस ड्रॉ करने पड़ जाते थे. तो उसी चीज़ को अब इजी बनाने के लिए हम लोग टाइमलाइन का यूज़ करते हैं, और टाइमलाइन उसी तरह से फ्रेम्स को वन बाय वन लगाता है, और फ्रेम्स उसको वन बाय वन प्ले करती है, और हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है. एक्चुअली में क्या होता है, वो एक के ऊपर एक लगा हुआ लेयर होता है जो उसको मूव कराता है. इसी को हम लोग फ्रेम्स कहेंगे, और उसमें लगा हुआ लेयर्स कहेंगे. नाउ द लेयर्स आर लाइक अ शीट, ओके, ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर. लेयर क्या है? एक शीट है जो ट्रांसपेरेंट पेपर के जैसा है. ओके, समटाइम इट्स मस्ट बी लाइक अ बटर पेपर. आप लोग बटर पेपर का यूज़ करते हैं ना, एक के ऊपर अलग शेप दिखाने के लिए, उसके ऊपर अलग शेप दिखाने के लिए एक और बटर पेपर यूज करते हैं. सो दिस इज द नोन एज, हाउ कैन वी यूज़ द लेयर. लेयर इज अ ट्रांसपेरेंट पेपर विच वी यूज़ वन बाय वन ऑन अ सिंगल पेपर, और फिर उसको हम लोग वन बाय वन
एक टाइमलाइन में लगाते हैं एंड देन वी सी अ complete movie or complete set of images, or we also known as a rapid display of some transparent paper is known as layers. Symbols क्या है? Symbols is an object. Symbol क्या है? Is an object. Various copies of it can be made and it can be used. बहुत सारे अलग अलग तरह के हमको symbols मिल जाते हैं, लेकिन उसका यूज़ क्या होता है? Sometime it must be a graphics, sometime we use a shape for a button, sometime we use as a movie clip. कुछ समय मूवी क्लिप के लिए भी यूज़ किया जाता है. Okay, this is the way how can we use a symbol. Symbol is an object, जैसा हम लोग पहले पढ़े. How can we use it? Go in a symbols area, select an object. किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक ऑन द मॉडिफाई मेन्यू. ठीक है, मॉडिफाई ऑप्शन में चले जाना है. Here is the modify, convert to the symbol option. उसको symbol option में convert करना है और फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. Now the motion path. What is a motion path? Motion path means when you want to show the movement of a car, movement of a person, movement of a ball. एक बॉल को एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए दिखा रहे हैं हम, या फिर किसी चीज़ को मूव करते हुए दिखा रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोग मोशन पाथ का यूज़ करेंगे. इसमें भी एक पेंसिल के जैसा लाइन हम लोग एक लाइन में दिखा सकते हैं, फ्री हैंड करके दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स दिखा सकते हैं. ठीक है, तो मोशन पाथ का भी मैं अभी आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. फिल्टरिंग टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट को डिज़ाइन करना. अगर हम टेक्स्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, चलिए इसका भी एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं. सो वी गो एंड स्टार्ट द प्रैक्टिकल सेक्शन फॉर अस. फॉर अ प्रैक्टिकल सेक्शन आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पेज. मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ प्रैक्टिकल सेक्शन दिखाने के लिए. ठीक है, तो चलिए क्या क्या हम लोग को प्रैक्टिकल सेशन में करना है. पहले हम लोग इस पेज का लेआउट चेंज कर देते हैं या रहने देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इन इंसर्ट स्टेप फॉर शोइंग योर पेंसिल मूवमेंट. पहले हम लोग पेंसिल को देखेंगे, पेंसिल का यूज़ कैसा है. तो उसके लिए हम लोग यहाँ से फ्री हैंड वाले को ले लेते हैं. फ्री हैंड. ओके, ना यू सी एक पेंसिल के जैसा है ना ये पेंसिल, और हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं. चलिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ. शेप में गया हूँ मैं और एक पेंसिल चूज़ किया मैंने. अब पेंसिल का यूज़ क्या है? लाइन खींचना, या फिर मान लीजिए मुझे नाम लिखना है, मैं नाम लिख सकता हूँ किसी का. ठीक है, सो दिस इज़ द वे हाउ कैन वी यूज़ अ पेंसिल. नाउ लाइन टूल. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाइन टूल? तो मैं एक लाइन टूल ले रहा हूँ. देखिए सीधा स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मैं एक लाइन टूल का यूज़ कर रहा हूँ. ओके, दिस इज़ द वे हाउ कैन वी यूज़ अ लाइन टूल. अब मैं एक लाइन टूल को जब ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ एक फॉर्मेट आता है जिसको हम लोग उसका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कर सकते हैं. ठीक है, तो एक लाइन की देखिए ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? इस एक लाइन की. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइन. इसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टी है? उसका कलर है, जैसा हमने बोला था. उसका इफेक्ट है. ठीक है, उस लाइन का इफेक्ट है. लाइन को हम लोग 3D में भी दिखा सकते हैं. ओके, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले. ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ कैन वी यूज़ अ लाइन. तो ये था एक लाइन टूल का डेमो और एक पेंसिल का डेमो. नाउ अब हम लोग को क्या करना है? चलिए एक टेक्स्ट टूल को हम लोग जो फिल्टर करने की बात किए थे, चलिए तो उसके लिए मैं पहले इन सबको हटा देता हूँ. या टाइमलाइन, पहले हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं. सो टाइमलाइन के लिए हम लोग फिर से पुराने वाले पेज में चलते हैं. नाउ यू सी देयर इज सो मेनी स्लाइड्स और सो मेनी पेजेस इन वन स्क्रीन. एक ही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बहुत सारे पेजेस मैंने लगा रखे हैं. ठीक है, लगा रखे हैं ना. वाई वी यूज़ दिस वन? फॉर शो यू अ स्लाइड शो और शो यू अ प्रेजेंटेशन. मैं पावर पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ. तो ये सारे पेपर क्या है? ये सारे पेपर्स जो हैं, ये सारे पेजेस जो हैं जिनको मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ये सब क्या है? ये एक टाइमलाइन का हिस्सा है और ये इसका टाइमलाइन है. ओके, यहाँ पर हम एक टाइमिंग देते हैं हर एक पेज को कि वो कितनी देर के बाद मूव करेगा. जैसे मैं इस वेलकम वाले को एक टाइम देता हूँ. ठीक है, मैंने इसे एक टाइम दे दिया है 2 सेकेंड का. ओके, चलिए देखिए मैंने F5 दबाया है. अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. ओके, ये खुद ब खुद 2 सेकेंड में अपने आप चेंज हो जाएगा. हुआ ना. सो दिस इज़ द वे हाउ कैन वी यूज़ द टाइम लाइन फॉर द थिंग्स. नाउ फिल्टरिंग ऑफ अ वर्ड. एक वर्ड को फिल्टर करना है.
सो उसके लिए पहले एक वर्ड हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने स्कूल लिखा है। अब इसको फिल्टर करने के लिए सबसे पहले सेलेक्टेड, एज वी ऑल नो, किसी भी काम को करने के लिए पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। नाउ आई सेलेक्ट माय वर्ड, देन यूज़ द फिल्टरिंग ऑप्शन। तो फिल्टरिंग ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, इसके स्टाइल से अवेलेबल है, ठीक है ना, स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके लिए कलर से अवेलेबल है, ओके। अब मुझे इसमें और कुछ चाहिए, तो जो वर्ड मैंने लिखा है इसका भी एक प्रॉपर्टी विंडो है, हर एक वर्ड का एक प्रॉपर्टी विंडो होता है, तो इसका भी एक प्रॉपर्टी विंडो है, हो गया। अब इस प्रॉपर्टी विंडो में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके शेप्स को, उसका बैकग्राउंड जो हम लोग को मिला हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। मुझे एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना है इस पेज में या इस वर्ड में, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा इफेक्ट चाहिए या ऐसा इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। मैंने ये इफेक्ट डाल दिया है। कुछ और इफेक्ट डालना है, मैं शैडो इफेक्ट चाहता हूँ मेरे वर्ड के लिए, सो मैंने शैडो इफेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। देखिए शैडो इफेक्ट पीछे आ रहा है ना। मैं इसके लिए एक और एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना चाहता हूँ, रिफ्लेक्शन या मैं एक और एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना चाहता हूँ, जैसे मुझे उसके लिए अलग तरह का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, तो मैंने वो अलग तरह का डिज़ाइन चुना है। अब देखिए इसका पीछे का शैडो भी अच्छी तरह से आ रहा है। सो दिस इज़ द वे हाउ कैन वी यूज़ द टेक्स्ट फिल्टर। नाउ द मोशन पाथ, मोशन पाथ के लिए मैं एक और पेज लगाता हूँ। देखिए मैं एक टाइमलाइन में पेज कैसे लगा रहा हूँ, मैंने एक पेज लिया हुआ है, मैं दूसरा पेज के लिए होम में जा रहा हूँ और न्यू स्लाइड को चूज़ करूँगा। चूज़ द न्यू स्लाइड, टेक अ पेज, मैंने एक पेज ले लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले कोई पिक्चर लगा लेता हूँ, एक कोई भी पिक्चर ले आते हैं। हाँ ओके, मैंने एक पिक्चर ले लिया है, ठीक है, मैंने एक पिक्चर ले लिया है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। मैंने एक पिक्चर लिया है। अब मैं इसके साथ एक शेप भी ले आता हूँ ताकि मैं मोशन पाथ को दिखा सकूँ अच्छी तरह से। मैंने एक शेप भी ले लिया है। अब मैं इस शेप को इस पिक्चर के पीछे डाल के ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या होता है, या इस पिक्चर को इस शेप के पीछे डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहले मैंने इसे लिया है। मोशन पाथ के लिए वी हैव टू गो इन एनिमेशन टैब, हम लोग को एनिमेशन में जाना है, ओके। सो हम लोग इसके लिए इस शेप को सेलेक्ट किए हुए हैं, हमें जाना है एनिमेशन में और ऐड एनिमेशन करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू ऐड एनिमेशन एंड देन वी हैव टू गो इन मोशन एरिया, ओके। यू सी मोशन पाथ रिटन हियर, मोशन पाथ है ना। मैं यहाँ से एक मोशन पाथ चूज़ कर ले सकता हूँ, जैसे मैं कस्टम पाथ चूज़ करना चाहता हूँ, ओके। चलिए देखते हैं काम बना या नहीं। लुक, ये जा रहा है ना। So this is the way how can we use the motion path. Now I want to use the gradient, तो मैं इसी से मैं आपको gradient यूज़ करके दिखाऊंगा। पहले मैं इस पिक्चर को हटा दूँ, ठीक है, तो मैं इसी शेप में आपको एक ग्रेडियंट यूज़ करके दिखाऊंगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, यानी कि इसके फॉर्मेट में जाएंगे। एज वी ऑल नो एवरी ऑब्जेक्ट हैव एन ऑन प्रॉपर्टी, तो हम लोग इसके प्रॉपर्टी में चले गए। शेप फील, हम लोग कहाँ जाएंगे, शेप फील में, और ग्रेडियंट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। लुक देयर इज अ ग्रेडियंट, हम लोग ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट कर लेते हैं, ठीक है। मोर ग्रेडियंट करते के साथ एक पाथ खुल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कलर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 कलर है। मैं तीनों कलर को चेंज कर करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट कलर को चेंज कर रहा हूँ मैंने फर्स्ट कलर को चेंज किया। सेकंड को चेंज करते हैं, सेकंड को चेंज किया, थर्ड को चेंज करते हैं, और मैंने थर्ड को भी चेंज कर दिया। तो अब क्या है, एक डिज़ाइन बना है। वी हैव सो मेनी डिज़ाइंस हियर, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। हम लोग उनके शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग और भी डिज़ाइंस है, जैसे रेक्टेंगुलर में अब आ गए हैं, सर्कल में है। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज़ द ग्रेडियंट, हाउ कैन वी यूज़ द ग्रेडियंट in our walk area. So this is the last topic, and for understand this chapter more you have to read the book. So thank you for watching this video and read the book.